پچھلے دنوں خیر و شر کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، اس میں یہ آپ کی طرف سے یہ بات واضح ہوئی کہ اس کے بغیر امتحان ممکن نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ خیر و شر کا وجود نہ ہوتا تو انسان کے ارادے کا امتحان کیسا ہوتا؟ اس پہ یہ رائے آئی کہ یہ وضاحت ہے، لیکن یہ اصل میں اخلاقی جواز نہیں ہے، جبکہ اگر شر یہاں پہ انسان کے ارادے کے شر کی بات نہیں ہے، زیادہ تر جو تنقید ہوتی ہے وہ نیچر میں جو انسان کے لیے سفرنگ موجود ہے اس پہ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اخلاقی حکم اس پہ نہیں لگایا جائے گا اور بس اس کے جواب میں یہ کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوگی یا امتحان ہے، تو پھر اخلاقی جو انسان جو بنیاد ہے خدا کو پہچاننے کی بھی، وہ وہ چیز اس کی تحلیل ہو جائے، وہ ختم ہو جاتی ہے، ڈیزالو ہو جاتی ہے پوزیشن۔ تو اس میں کیا یہ جو بات ہے کہ اس کے بغیر امتحان ممکن نہیں تھا، کیا ایسا ہی ہے کہ یہ وضاحت ہے، یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے اخلاقی؟ اور دوسرا یہ کہ کیا اخلاقی جسٹیفیکیشن دینا اس بات کی کہ جتنی بھی سفرنگ رکھی گئی ہے، اس کے لیے مثال دی جاتی ہے کہ ایک اگر ہرن ہے وہ کسی جنگل میں درخت کے نیچے آ گئی ہے اور اب وہ تڑپ تڑپ کر مر رہی ہے، کچھ کھا بھی نہیں سکتی اور وہاں پہ تو انسان بھی موجود نہیں ہے، تو اس کی یہ سفرنگ جو ہے اس کا انسانوں کے ساتھ ان کے ارادے و اختیار کی آزمائش کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو اس طرح کی سفرنگ کی مثالیں دی جاتی ہیں اور پھر کہا جاتا ہے کہ اس پہ اخلاقی حکم آپ لگاتے نہیں ہیں اور اللہ چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ، تو اخلاقی پوزیشن ہی ڈیزالو ہو جاتی ہے۔ اور اس میں ابھی جو ایک ویسٹ میں پوزیشن ہے جیسے ہارٹ ہے، مینٹل ہارٹ، وہ یہ کہتے ہیں یہ بڑی تکلیف دہ سچویشن ہے اور میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے، یعنی کہ میں اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہوں، میں اس آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہوں، لیکن یہ سوال بہت اہم ہے، لیکن اس کا میں کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ وہ اس طرح سے اس کو کاؤنٹر کرتے ہیں۔ جی، جزاک اللہ۔ ہم اس دنیا کا مطالعہ کرتے ہیں، ہمیں شعور دیا گیا ہے، ہمارے پاس ایک حادثہ اخلاقی بھی ہے، اس کی روشنی میں بھی ہم حکم لگاتے ہیں، ہمارے پاس اس سے جوالیات بھی ہے۔ جب ہم اس کائنات کو، اس دنیا کو، اس کے مسائل کو دیکھتے ہیں تو دو چیزیں بالکل واضح طور پر نظر آتی ہیں، وہی سوال پیدا کرتی ہیں، اسی کو مسئلہ شر سے تعبیر بھی کیا جاتا ہے۔ وہ یہی دو چیزیں ہیں، ایک انسان کے ارادہ و اختیار سے شر پیدا ہوتا ہے، انسان جب اس کا سوء استعمال کرتا ہے تو دوسروں کے لیے مسائل پیدا کر دیتا ہے، کسی کی حق تلفی کرے گا، کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کرے گا، اپنی خواہشات سے مغلوب ہو کر دوسروں پر غلبہ پانے کی صحیح کرے گا، اس میں بے انصافی بھی کرتا ہے، ظلم کا ارتکاب بھی کرتا ہے۔ ایک پہلو یہ، دوسرے یہ کہ اللہ پروردگار عالم نے جو ہمارے گرد و پیش میں دنیا بنائی، جس کو ہم آفاق سے تعبیر کرتے ہیں، وہ کامل نہیں، اس کے اندر ناتمامی ہے، نقائص رکھے گئے ہیں۔ یہ انہی نقائص کا بیان، یعنی عام حالات میں اگر دیکھا جائے تو پوری کائنات ایک نظم اور ضبط کے ساتھ کھڑی ہے، اس میں کوئی خلل نہیں ہے۔ ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ بے نظیر حکمت اور بے پناہ معنویت ہے، ایک ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ وابستہ ہے، لیکن دو چیزیں انسان کو متوجہ کرتی ہیں۔ ایک یہ کہ آخر یہ چھوٹے سے قرے پر زندگی پیدا کی گئی ہے، باقی کہیں زندگی نظر نہیں آتی، اور نہ زندگی کے لیے اسباب پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ مادے کے ڈھیر کس لیے، یہ وسیع کائنات کس لیے ہے، یہ عظیم کائنات کیوں بنائی گئی؟ اور دوسرا یہی کہ ہماری اس زمین پر مخلوقات ہیں، ان مخلوقات کو جو حالات پیش آتے ہیں وہ بعض اوقات ناقابل فہم ہو جاتے ہیں، جس کی آپ نے ایک مثال دی۔ یہ انسان کے سامنے وہ سوال ہے جو اس دنیا کا مطالعہ کرنے کے بعد وہ ہر لحظے محسوس کرتا ہے کہ اس کے لیے اضطراب کا، پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ پیغمبروں نے آ کر اس کا جواب دیا ہے، یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، یہ اللہ پروردگار عالم کی طرف سے یہ وضاحت ہے کہ میری اسکیم کیا ہے۔ چنانچہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ دنیا عارضی دنیا ہے، اس کو ایک دن ختم ہو جانا ہے، اس میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ امتحان کے لیے، طلاق کے لیے، یہ اس کو بیان کیا ہے
नबलुकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितनतन व इलैना तुरजऊन, यानी हम तुमको आजमा रहे हैं, जांच रहे हैं, परख रहे हैं, इसलिए कि तुम्हारे अंदर जो खरा खोटा है उसको अलग कर दें, उसके बाद तुम्हें हमारी बारगाह में पेश हो जाना। ये कुरान मजीद ने जवाब दिया है, पैगंबरों ने आकर ये बता दिया है। यहाँ ना सवाल किसी जस्टिफिकेशन या तस्वीर या तबरीर का है, और ना इसका सवाल है कि हम अपनी तरफ से कोई बात कह रहे हैं या बात बना रहे हैं। ये इत्तला है। अब सवाल ये होना चाहिए कि जब इब्तला के उसूल पर ये दुनिया बनाई गई है, तो इस पर अखलाकी लिहाज से क्या एतराज पैदा होता है? यानी अखलाक की फिर तारीफ करनी चाहिए। अखलाकी लिहाज से हम किसी चीज को अच्छा या बुरा कहते हैं तो दो पहलू होते हैं। एक ये कि वो अपनी जात में बुरी चीज है, दूसरे ये कि अपने नतायज के लिहाज से बुरी चीज है। तो उसकी बुराई को हम समझने की सही करते हैं, और फिर दूसरों को भी ये कहते हैं कि तुम्हें भलाई की पैरवी करनी चाहिए और बुराई से बचना चाहिए। तो इरादा और इख्तियार से जो शर पैदा होता है, वो भी बिल्कुल वाज़ेह तरीके पर मालूम हो जाता है कि अपने अंदर क्या बुराई का पहलू रखता है। और इसी तरह से इस दुनिया में जो मुसीबतें, तकलीफें जानवरों को पेश आती हैं, हम इंसानों को पेश आती हैं, इन सब को सामने रख के, और जिस तरह मैंने इस पूरी कायनात के बारे में अर्ज किया कि वो भी अपने अंदर एक ऐसी नातमामी रखती है जिसका कोई जवाब नहीं। अल्लाह ताला ने उसका जवाब दिया। ये जवाब हम ना अकल से पा सकते थे, ना अपने तफक्कुर से पा सकते थे। हमारे पास एक ही रास्ता था, और वो ये कि या फितरत के हवाले करके इन चीज़ों को जीते, और जी रहे हैं। वो बहुत से लोग जो इल्हाद को अपना दीन मानते हैं, या उन्होंने इस चीज़ों का कोई इलाज दरियाफ्त कर लिया है, वो भी इनके साथ जीने के लिए हमें अल्लाह ताला की तरफ से वजाहत के साथ बता दिया गया है कि ये स्कीम, इस स्कीम के मुताबिक मैं तुम्हारा इम्तहान कर रहा हूँ। इम्तहान करने वाला ही ये फैसला करता है कि वो किस किस पहलू से इम्तहान करेगा। इतना हमें मालूम है कि ये इम्तहान इल्म का भी है और ये अमल का भी है। यानी इल्म को भी मुश्किलात पेश आएंगी, इल्म को भी नशेबो फराज नजर, इल्म भी बहुत सी चीजों में उलझन महसूस करेगा, उसमें सही रास्ते पर रहने की सही कर। तो गौर करके देख लीजिए, ये जितनी चीजें हैं, क्या ये वाकया नहीं है? एक तरफ इस आलम का परवरदिगार इतना हुस्न पैदा कर रहा है, इतना खैर पैदा कर रहा है, चारों तरफ से वो खैर अहाता किए हुए, बेपनाह सलाहियतों का ज़हूर हो। खुद ये कायनात उस हुस्न को नबातात में नुमायां करती है, ये जमादात में नुमायां करती है, इतने पहलुओं से नुमायां करती है कि इंसान के लिए शुमार करना मुमकिन नहीं रहता। बाज मकामात ऐसे रखती हैं जो इंसानी इल्म में इस्तराब पैदा करते हैं। वहाँ ये देखना मकसूद है कि इंसान की निगाह क्या मुस्बत ज़ाविये से चीज़ों को लेती है, और इस मामले में अल्लाह ताला के इस बयान को मान लेती है, या इसके मामले में तमर्रुद और सरकशी का मुज़ाहिरा करती है। ये इल्म का इम्तहान है, इस नातमामी के साथ लिया जा रहा है। यही सूरत हाल अमल के मामले में इंसान को दरपेश है। तो इस तरह से इस चीज़ को देखना चाहिए। मैं कभी नहीं समझ सका कि इस पर अखलाकी सवाल क्या पैदा होता है। यानी वो मामला जो मैं करता हूँ, उसके बारे में तो ये सवाल पैदा होता है कि मैं एक इंसान हूँ, इंसान की हैसियत से क्या मुझे किसी चीज़ का लाइसेंस दिया गया है? नहीं। मेरा शऊर भी यही कहता है, मेरा हादसा अखलाकी भी यही हुक्म लगाता है, और अल्लाह ताला की हिदायत भी यही कहती है कि तुम्हें दूसरों के लिए खैर का मंबा बनकर रहना, लोगों के साथ भलाई करनी, मारूफात की पैरवी करनी। तो इस वजह से मेरे अखलाकी वजूद के मामले में तो कोई सवाल बाकी नहीं रहता, फैसला मुझ पर आ जाता है। अगर ये कहा गया होता कि नहीं, इंसान भी जो कुछ कर रहा है अल्लाह की इज़्ज़त से कर रहा है, तो फिर ज़ाहिर है कि इंसान के बारे में सवाल पैदा होता। इसके बाद अल्लाह क्या कर रहा है? तो वो इस कायनात का खालिक है, वो सब चीज़ों का मालिक है। वो जो मामला करता है, उसने उसूल में बता दिया कि मैं वो इंसाफ के साथ कर रहा हूँ, इंसाफ के साथ उसका नतीजा निकालूंगा। इत्तला का कानून इस कायनात में ज़रूर कार फरमा है, और ये मैंने जिन्नों और इंसानों के इम्तहान के लिए बनाया। इसमें ज़ाहिर है कुछ सवालात ऐसे रह जाएंगे जो ज़ाते बारी से मुतल्लक़ हमारे लिए
एक सवालिया निशान बने रहे। उनके लिए अगली दुनिया का इंतजार करना चाहिए। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम इस दुनिया में शऊर की आंख खोलते हैं तो हमें सवालात दरपेश हो जाते हैं। हमारा बच्चा भी ज़ाहिर है पूरा इंसान है, वो सवालात करना शुरू करता है। बाज़ सवालात ऐसे होते हैं जो उस वक़्त उसके लिए वाज़ेह किए जा सकते हैं, वो हम करते हैं। बाकी के बारे में ये कहते हैं कि जब तुम शऊर की उस सतह पर पहुँचोगे जहाँ हम खड़े हैं, तो इन सवालों के जवाब भी तुम्हें मिल जाएँगे। यही बात तमाम इंसानों को कहनी चाहिए कि तुम्हारे लिए एक दुनिया ये है, इसमें कुछ सवालात बाकी रहेंगे, उनका जवाब अल्लाह ताला आगे देंगे और उसका वादा किया उन्होंने। फरमाया है कि मैं उन सब चीज़ों का फैसला करूँगा और उनके बारे में तुम्हारे सामने हकायत बिल्कुल वाज़ेह तरीके पे रख दूँगा, जिनमें तुम यहाँ इख्तिलाफ करते हो। तो ये इंसान को उसके हुदूद इल्म की तालीम है और यही चीज़ है जो अगर सही तरीके से मौजूद हो, तो दुनिया की ज़िंदगी भी सही उसूल पर गुज़रती है और आखिरत की राह भी खुलती है। अगर इंसान क़ब्ल अज़ वक़्त हर चीज़ का जवाब पाने के लिए बेताब हो जाए, तो वो इल्म के इम्तिहान में ही कामयाब नहीं हो सकता। इस पहलू से इस सारे मामले को देखना चाहिए। मेरा अपना नुक्ता नज़र ये है कि ये चीज़ें उन्हीं लोगों के लिए बाइस इज़्तिराब बनती हैं, जो असलन ना अल्लाह ताला पर ईमान रखते हैं, ना आखिरत पर ईमान रखते हैं। वरना इन दोनों चीज़ों को मानने के बाद तो सिर्फ नताइज की ताख़ीर हमारे लिए फैसला बनती है, बाकी चीज़ों के बारे में तो मुतमिन कर दिया गया है। नताइज की ताख़ीर को हम दुनिया में बर्दाश्त करते हैं, गवारा करते हैं। इंसान के मामले में उसको बहुत अहम समझते हैं और तवज्जो दिलाते हैं, अपने बच्चों को भी बताते हैं, छोटों को भी बताते हैं, तालिब इल्मों को भी बताते हैं कि ये चीज़ें ऐसे समझ में आएँगी, इस तदरीज से समझ में आएँगी, इस मरहले तक पहुँचना होगा। वहाँ ये सारी चीज़ें हमें बड़ी माकूल लगती हैं। तो यही मामला जो अल्लाह ताला के साथ भी करना चाहिए।